Okay. So students, now we will solve the numericals of chapter work and energy. Okay. So work and energy. Page number 149. Some questions are given और वो 149 में एक सम है वो हम लोग देखते हैं अभी. Question given the fourth one. The pair of bullocks exert a force of 140 Newton on a plow. So it exerts the force of 140 Newton on a plow. Okay. Then the field become plowed in is 15 meter long. Displacement 15 meter. Distance आया, distance either that is distance or displacement, but यहाँ पे work energy तो displacement है. How much work is done in plowing the length of field? कितना work done होगा? So we have formula लिखना जरूरी है because it carries also marks. तो हमारे पास formula है work done is equal to force into displacement. So it is 140 into 15. Just multiply 15 zeros are 0, 15 fours are 66 carry. Good evening, sir. So this one is a 2100 and it is watt, therefore it is joule. Sum completed. Do fast. Students, page number 152. The kinetic energy of an object of mass m moving with the velocity 5 meter per second is 25 joule. So sum थोड़ा twist करके दिया है. Kinetic energy of an object of mass m moving with the velocity 5 meter per second is 25 joule. So 25 joule, that is the kinetic energy. आराम से पढ़ने का क्वेश्चन को समझने का. So page number 150. So kinetic energy, that one is a 25 joule and moving with the velocity that is 5 meter per second and mass is given m. Mass की value हम लिख देंगे. What will be its kinetic energy when velocity is double? What will be its kinetic energy when the velocity is increased by 3 times? वेलोसिटी डबल होगी तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी और वेलोसिटी 3 टाइम्स होगी तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, ये हमें फाइंड आउट करना है. बट इसके पहले हमें m फाइंड आउट करना होगा. मास है ही नहीं, और मास क्यों फाइंड आउट करना होगा? बिकॉज जब डबल होता है, ट्रिपल होता है, तो उसमें मास की वैल्यू हमें पुट अप करनी पड़ेगी. सो वी हैव फार्मूला काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv². दिस इज द फार्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी. तो k कितना है 25, हाफ एज इट इज है इनटू m इनटू वैल्यू ऑफ v इज 5 का स्क्वायर. सो 25 एज इट इज, हाफ एज इट इज, m एज इट इज, 5 का स्क्वायर इट इज ऑफ 25. नाउ दिस हाफ 2 इज द डिनोमिनेटर, यहाँ पे न्यूमरेटर में जाएगा इफ व्हेनेवर इट्स ऑफ क्रॉस इक्वल टू साइन. 25 मल्टीप्लाई और डिवाइड में जाएगा इज इक्वल टू m. 25 गया, बचा 2 और m, therefore m is equal to 2 and this is mass, therefore kg. मास आ गया, ये फिक्स है, ये चेंज नहीं होगा. अभी क्या बोला है सेकंड पार्ट, इफ वेलोसिटी इज डबल. वेलोसिटी डबल होगी तो v कितना हो जाएगा? पहले कितना था? 5 था, तो 2 into 5 होगा. डबल है ना, होगा 10 मीटर पर सेकंड. मास कितना है? मास फिक्स है, मास नहीं चेंज हो रहा है. मास एज इट इज 2 kg. तो उसने क्या पूछा है? इफ द वेलोसिटी डबल तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? देखो फार्मूला k is equal to half into m into v square, या डायरेक्टली यू कैन राइट हाफ mv square as you wish. हाफ एज इट इज m की वैल्यू है 2, यहाँ पे लिखा है v की वैल्यू है 10 और 10 का हमें करना है स्क्वायर. 2 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कैंसिल, 10 का स्क्वायर होता है 100 जूल.
सर थोड़ा बेसिक बताओगे इसका स्टार्टिंग से। So third basic already I taught in that day. And if the velocity is 3 times, if velocity 3 times होगा मीन्स क्या होगा, 3 से ओरिजिनल कितना था 5 था, 3 टाइम्स मीन्स कितना होगा v इज इक्वल टू 3 इंटू 5, कितना हो जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड। अभी क्या बोला है, इफ वेलोसिटी 3 टाइम्स है तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, हाफ m कितना है 2 और v कितना है 15 का स्क्वायर, दिस कैंसिल, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 जूल। सो योर सम सॉल्व। सर मेरा मतलब है फॉर्मूला का डिस्क्रिप्शन दे दो, मतलब किस पे क्या टाइम पे। Page number 156. A lamp consumes 1000 joule of electric energy in 10 seconds. What is its power? A lamp consumes 1000 joule of electric energy means work. उसका वर्क है 1000 joule in time 10 seconds. What is its power? तो हमारे पास फॉर्मूला है पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। पावर is equal to work done upon time. So 1000 upon 10, 0, and the unit of power is what? WATT. So power of the lamp is 100 watt. Sum completed. Okay, over. Yes sir. Yes, sir. Okay, all are present today, na? Just everyone, if not understood, na, just ask me. I given you that rights to unmute yourself, and you can ask me. So now we are doing the sum from exercise. Okay, exercise question number 4. Question number 4 is given that a certain force acting on 20 kg mass changes its velocity from 5 meter per second to 2 meter per second. Calculate work done by the force. क्या क्या दिया है, मास गिवन 20 kg, वेलोसिटी चेंज हो रही है, स्टार्टिंग में वेलोसिटी थी 5 मीटर पर सेकेंड, देन हो गई 2 मीटर पर सेकेंड, एंड वी हैव टू फाइंड वर्क डन। हमें वर्क डन फाइंड आउट करना है। So for, again I repeat the sum, a certain force acting on a 20 kg mass at 20 kg, ठीक है, mass 20 kg है, changes its velocity from 5 meter per second to 2 meter per second. स्टार्टिंग की वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड, स्टार्टिंग मींस इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग u लेटर से दिखाते हैं। फर्स्ट टर्म में हम लोग ने देखा था 5 मीटर पर सेकंड, चेंज हो गया, फाइनल वेलोसिटी बिकम 2 मीटर पर सेकंड, पहले 5 था फिर 2 हो गया। वी हैव टू फाइंड वर्क डन बाय द फोर्स, कितना वर्क डन हुआ। सो हियर द फार्मूला इज दैट वर्क डन, वेलोसिटी चेंज हो गई तो काइनेटिक एनर्जी भी चेंज हो गई, तो वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अभी स्टूडेंट्स काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला देखो क्या है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर,
लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी दो है, एक v भी है एक u भी है, तो ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी है और एक इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आएगा हाफ mv/m/u²। एक इनिशियल है एक फाइनल है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट हाफ m/u² माइनस हाफ mv², हाफ mv² माइनस हाफ mv²। अभी मैंने u वाला पहले क्यों लिया, बिकॉज़ ये बिगर क्वांटिटी था। सो अभी हाफ एंड m दैट वन इज द सेम, दोनों जगह वही है, हाफ m हाफ m। तो आई विल टेक हाफ m कॉमन, ब्रैकेट में बचा u² माइनस v²। नाउ जस्ट पुट अप द वैल्यू, हाफ का हाफ एज इट इज, m कितना है 20, ब्रैकेट में लो u की वैल्यू है 5 का स्क्वायर एंड v की वैल्यू है 2 का स्क्वायर। तो 1 जा 10 जा 10 का 10 एज इट इज, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2 का स्क्वायर 4, so 10 this become 21, so got 21 10 जा 210 जूल। so वर्क डन कितना है तुम्हारा, वर्क डन is equal to 210 joule। sum completed। सो क्वेश्चन नंबर हम लोग लेते हैं 9th। A certain household had consumed 250 unit of energy during a month। एक मंथ में 250 यूनिट्स आता है। हमारा टोरेंट पावर का बिल आता है, देखो कल्याण वाले एमएससीबी का बिल आता होगा, वहां पे यूनिट्स आते हैं, यूनिट्स, एंड अकॉर्डिंग टू यूनिट्स तुम्हें इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है हर महीने। नहीं देखा होगा तो अभी देख लो। सो अगर 250 यूनिट्स आ रहे हैं उसके एक महीने में, ओके, हाउ मच एनर्जी इन जूल, जूल में कितना होगा, 250 यूनिट्स में जूल में कितना होता है। तो अभी पहले रिलेशन देखते हैं स्टूडेंट्स, 1 किलोवाट 1 यूनिट मींस कितना, ये तुम लोग कहीं पे लिख के भी रखना, 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर, 1 यूनिट मींस 1 किलोवाट आवर। अभी किलोवाट आवर है तो इसको सेपरेट करो, 1 किलोवाट into 1 hour। किलोवाट आया तो मैंने लास्ट में बताया था, किलोवाट आता है मींस 1000 होता है। सो 1 किलोवाट मींस 1000 वाट इनटू 1 आवर में कितने सेकंड्स होते हैं, 3600, करेक्ट। 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स, और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60। तो 60 into 60 करोगे तो आएगा 3600 सेकंड्स। 1 आवर में कितने सेकंड्स है, 3600। सो मल्टीप्लाई करो, 1 2 36 into 1 36, 1 2 3 4 5, और वॉट into सेकंड्स मींस होता है जूल। सो 1 यूनिट मींस 36,000 जूल, ठीक है। तो अभी हमारे पास क्वेश्चन क्या है, 250 यूनिट्स है, उसको जूल में कन्वर्ट करना है। वी हैव टू कन्वर्ट 250 यूनिट्स इनटू जूल। So 250 units is equal to 250 into मल्टीप्लाई करो 3 6 1 2 3। अरे मैंने कुछ गड़बड़ किया, 1 2 3 0 लगाई, आगे के दो कौन लगाएगा, कोई बोल भी नहीं रहा। 36 into 1 36, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। 1 यूनिट में कितने जूल होते हैं, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 5, तो 36 लाख। हां 36 लाख 36 लाख जूल होते हैं। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करो फिर से, कितने जीरो हो गए, 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो हो गए, 36 5 180 होता है, ठीक है।
36 5 180 होता है, चेक करो होता है क्या। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, 1 2 3 4 5 6, 36 5 180 होता है बचा 80, 36 2 जा 72, 72 और 80 90 होता है। तो कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यू कैन राइट लाइक 9 और उसके ऊपर 8 जूल, और फिजिक्स में हम लोग के लिखने के लिए लिखते हैं 10⁸8। 10⁸8 मींस 8 जीरो जूल, यानी 250 यूनिट्स। 250 यूनिट्स मींस कितने होते हैं 9 × 10⁸8 जूल। ये रिलेशन है। अब ये कैसे आया, इसके लिए पहले तुम्हारे पास ये आना चाहिए, ये आ गया तो ये भी आ जाएगा। ओके, तरुण नाम का कोई था। तरुण आया था, तरुण। ठीक है, सम नंबर 10, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 40 kg, an object of mass 40 kg is raised to the height of 5 meter, 5 मीटर तक ऊपर गया, हाइट है h, you can write s also, s भी लिख सकते हैं बट h लिखो, हाइट है तो। above the ground, what is the potential energy, p find out करना है हमें, potential energy। पोटेंशियल एनर्जी क्या फॉर्मूला है पोटेंशियल एनर्जी का, mgh, पोटेंशियल एनर्जी इज mgh, m 40 है एंड द वैल्यू ऑफ g नॉट गिवन, g की वैल्यू नहीं देते तो कितनी लेनी है 9.8, 9.8, फिक्स है वो। अगर सम टाइम कभी दिया है कि 10 लो तो ही लेने का, अदरवाइज 9.8 फिक्स है। और h इज ऑफ 5, करो मल्टीप्लाई, 5 × 40 200 into 9.8, एक डेसिमल प्लेस एक जीरो कैंसिल, तो 20 into 98 बचेगा, फिर जीरो का जीरो, 2 8 जा 16, 1 कैरी, 2 9 जा 18 and 1 90, और एनर्जी है तो यूनिट क्या रहेगा इसका, जूल। सो पोटेंशियल एनर्जी इज 1960 जूल। अभी ये क्वेश्चन पूरा हुआ नहीं, पिक्चर अभी बाकी है। Is the object is allowed to fall, object नीचे आ रहा है, find the kinetic energy when it is half down। अगर वो ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी, लेकिन वो आधे रास्ते में है, अगर वो आधे रास्ते में है तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। सो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ओके, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे according to law of conservation of energy। Sir, 20 into 9.8 196 joules है। क्या बोल रहा है Sir, 20 into 9.8 is equal to 196 joules। 196 कैसे, इस 40 into 5 200 होता है, करेक्ट, ये 9.8 है। Yes sir, yes sir, okay sir। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी रिमेन सेम। एनर्जी कभी उसने बोला था एनर्जी नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉयड, कभी वो बना भी नहीं सकते कम भी नहीं हो सकते, तो देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी हमेशा सेम होती है, दोनों सेम है। यानी अगर पोटेंशियल एनर्जी 1960 है तो काइनेटिक एनर्जी भी 1960 ही होगी। बट अभी यहाँ पे बट आया, क्या आया, व्हेन द ऑब्जेक्ट काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट इज हाफ वे डाउन, सो kinetic energy when
ऑब्जेक्ट इज हाफ वे डाउन। हाफ वे डाउन मींस अगर ये डिस्टेंस उसने 5 मीटर का था तो अभी उसने कितना किया 2.5, आधे डिस्टेंस पे, पूरा डिस्टेंस कवर नहीं किया है। तो जो भी एनर्जी थी वो कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी ना। पूरा डिस्टेंस कवर किया होता तो जितनी एनर्जी थी उतनी की उतनी कन्वर्ट हो गई होती, लेकिन आधा डिस्टेंस ट्रेवल किया तो आधी एनर्जी ट्रांसफर हो गई। सो के इज इक्वल टू हाफ इनटू पी, हाफ into 1960 करो डिवाइड, 9 का 18, 8 का 0 का 2, सो काइनेटिक एनर्जी आ गया 982। अगर टोटल डिस्टेंस कवर किया होगा तो 1960 ही होता, बट इट कवर हाफ डिस्टेंस, देयरफॉर वो एनर्जी भी कितनी ट्रांसफर हो गई, हाफ। कहते हैं हम लोग नहीं 14 10 तो हो गया, 14 इज an electric heater is rated 1500 watt. How much energy does it use in 10 hours? 10 घंटे में कितना एनर्जी कंज्यूम करेगा वो इलेक्ट्रिक हीटर। घर में हीटर होता है, देखो ज्यादा काम, तुम लोग हीटर चलाओगे कितना यूनिट आएगा तो पता चलेगा। फिर बोलते हैं हम लोग करंट पावर वाले ने बिल ज्यादा दिया, ऐसे भी ज्यादा ही देता हो, लेकिन फिर भी 14 इलेक्ट्रिक हीटर है 1500 वॉट का है। कितना टाइम के लिए चालू कर रहे हैं उसको, 10 आवर्स। अभी कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा, हमने फॉर्मूला इसका देखा था, क्या फॉर्मूला था, पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन मींस एनर्जी कंज्यूम, कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा हम लोग को ये फाइंड आउट करना है। वर्क डन के यहाँ पे तुम लोग लिख सकते हो एनर्जी ENER कंज्यूम, ठीक है। पावर है 50 ये, this one is the EM और ये 10, ये 10 इधर करो, 1500 into 10 is equal to कितना हो जाएगा, therefore energy consumed by electric heater 15,000 जूल। इतनी इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करेगा 10 आवर्स में, और फिर बोलेंगे हम लोग बिल ज्यादा आ गया। कुछ इसमें के सम्स बहुत सिंपल है ना, कुछ हार्ड है ही नहीं इसके अंदर। न्यूमेरिकल के जैसे ही है, बट वैल्यूज आर नॉट गिवन, तुम लोग को खुद का दिमाग लगाना है यहाँ पे। An object of mass m moving with a constant velocity v, mass दिया है m and velocity is equal to v, ठीक है। सर प्रथम कुछ तो बोल रहा है चैट में। हाँ ठीक है, जाते उधर मत जाना। How much work should be done by an object in order to bring the object to rest? Okay, how much work should be done to an object in order to bring the object in a rest? ऑब्जेक्ट को रेस्ट में लाने के लिए कितनी एनर्जी वहां पे लगेगी, यानी पहले ऑब्जेक्ट मूविंग है, जा रहा है, बाद में स्टॉप हो गया, तो उसको कितनी एनर्जी वर्क शुड बी डन, कितना वर्क डन होगा। सो वर्क डन बाय मूविंग ऑब्जेक्ट, whenever body is moving, कौन सी एनर्जी possess करता है, काइनेटिक एनर्जी। so that is half mv square, यही है half mv square। when
ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, ऑब्जेक्ट जब रेस्ट में है तो हाफ एम वी स्क्वायर, बट रेस्ट में आया तो वेलोसिटी क्या होगी उसकी, जीरो होगी। तो 0 इंटू एम इंटू हाफ क्या होगा, 0। लिसन, वर्क डन बाय मूविंग ऑब्जेक्ट, जब ऑब्जेक्ट जा रहा है फास्ट, फिर स्पीड से जा रहा है, कितना वर्क डन करेगा, हाफ एम वी स्क्वायर। वो रुक गया एक ही जगह पे, वेलोसिटी 0 हो गई, कितना वर्क डन हो गया, 0। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है, how much work should be done on object in order to bring the object at a rest? So total work done by object, तो स्टार्टिंग में इतना वर्क डन किया, बाद में इतना वर्क डन किया, टोटल कितना वर्क डन किया, हाफ एम वी स्क्वायर। हो गया समझ। दो चीजें हैं यहाँ पे, ध्यान से समझो। व्हेनेवर ऑब्जेक्ट इज मूविंग, वो रेस्ट में आने के लिए कितना वर्क डन करेगा, जितना स्पीड से वो जा रहा था, सपोज इट इज मूविंग विद 50 किलोमीटर पर आवर, तो उसको रोकने के लिए भी 50 किलोमीटर पर आवर उतनी एनर्जी लगानी पड़ेगी। सो स्टार्टिंग स्पीड एंड उसको रोकने के लिए जो स्पीड लगाए, दोनों को माइनस करो, व्हाटएवर द आंसर, इतना वर्क डन करेगा ऑब्जेक्ट को रेस्ट में लाने के लिए। यानी अगर प्रथम को कोई कुश्ती लड़ रहा है, रेसलिंग कर रहा है प्रथम से, तो जिसके पास प्रथम की इतनी एनर्जी उसी को लगा। 17 कैलकुलेट द वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन टू स्टॉप अ कार ऑफ 1500 kg 1500 kg moving at a velocity of 60 kilometer per hour. So mass of car is 1500 kg and velocity क्या दिया है, velocity 60 kilometer per hour। अभी तुम लोगों को याद होगा, मैंने तुम लोग को एक फॉर्मूला सिखाया था किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकंड में जाने के। 5/18 हाँ, मैंने किलोमीटर पर आवर का तो मीटर पर सेकंड में करते ही तुम लोग को करना है। सो वेलोसिटी 60 इनटू क्या था, 5/18, करेक्ट। तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड, इससे डिवाइड होता है 6 से, 6 3 था 10 था, हो गया 50/3 मीटर पर सेकंड। अभी इसको ऐसे ही रहने दो, कोई करना नहीं है। क्वेश्चन क्या है, एन calculate the work required to be done to stop a car. So work done by moving car, ये कितना कार्य करती है, यानी क्या होता है इसका काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ एम वी स्क्वायर। अब फायदा मतलब हाफ एम की वैल्यू 1500 और v की वैल्यू है 50/3 होल ब्रैकेट स्क्वायर, तो आएगा हाफ इनटू 1500 इनटू 2500/9। ठीक है। सो अभी इसे कैंसिल क्या क्या कर सकते हैं हम लोग, ऐसे कर सकते हैं 3 3 5 0 और ये आ जाएगा 250। अभी कुछ कैंसिल नहीं हो सकता है, 25 25 6 2 5, कितने 0 1 2 3/3, इसे पॉइंट में कन्वर्ट करो, 6 2 5 1 2 3 और 3 3 2 6, 2 लिया नहीं चलेगा, एक 0 लो, 8 24 1 0, एक 0 लिया, 3 3 9, फिर एक 0 लो, कितने 0 होती है अभी 1 2 यानी 3 3.3। सर 3 इंडेफिनाइट टाइम आएगा, रिपीट होते रहेगा। क्या बोल रहा है, 3 रिपीट होते ही रहेगा। कुछ समझ में नहीं आया मेरे को सर। मैं बोल रहा हूँ 3 रिपीट होगा। हाँ, so it is 20833.3 मीटर पर सेकंड। ठीक है,
इट इज ऑफ मीटर पर सेकंड यहाँ पे आया. सो सर हाँ सर ते 500 ला कट करून काय दिलंय ब्लॉक दिसते स्क्रीन 250 ठीक है. सो आगे आएगा वर्क डन एट रेस्ट. रेस्ट मीन्स कार रुक गई है. कार रुक गई है तो वर्क डन होगा क्या? कुछ नहीं होता है, जीरो होता है. जो प्रीवियस सम हम लोग ने किया था एज इट इज है. अभी क्वेश्चन क्या बोला है? हाउ मच वर्क शुड बी डन. नहीं, ये अलग है. कैलकुलेट वर्क डन टू स्टॉप कार स्टॉप करने के लिए कितना एनर्जी वर्क डन लगेगा. इसमें से माइनस करो और यहाँ पे मीटर पर सेकंड नहीं आएगा, इट इज ऑफ जूल क्योंकि ये वर्क डन है. 20833.3 minus 0, so it is 20833.3 joule. Sum completed. कैलकुलेशन सही है क्या रे मेरा? हाँ सर. मेरे को किधर तो गड़बड़ लग रहा है. एक मिनट रुक. 25 25 6 25 1 2 3 3 से डिवाइड किया. यहाँ पे एक 3 यहाँ पे आएगा ना. नहीं 1 2 3 0 है ना, तो 1 2 3 आएगा. सो इट शुड बी 3. कैलकुलेशन रॉन्ग था मेरा. सर लास्ट 20. 208,333.3 जूल. करेक्ट. ओके नाउ Yes, sir. कर रहे हैं. What we have to find? Sir, energy in kilovolt. Power of one device is 500 watt. So power of 4 devices is equal to 4 into 500 is equal to 2000 watt, means 2 kilowatt ना. 2 किलोवाट होता है. कितना टाइम कंज्यूम किया है इसने? 10 आवर्स. 2000 watt means 2 kilowatt और टाइम कितना आया? 10 आवर्स. व्हाट टू फाइंड? क्या फाइंड आउट करना है? एनर्जी. एनर्जी कंज्यूम. फॉर्मूला है पावर इनटू टाइम. कैसे होता है फॉर्मूला? पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम. तो पावर इनटू टाइम इज इक्वल टू वर्क मींस एनर्जी कंज्यूम. सो एनर्जी कंज्यूम इज इक्वल टू P into T. सो 2 into 10 so is equal to 20 kilowatt hour. 20 kilowatt hour. इतने एनर्जी उसने कंज्यूम किया. Whenever you write that kilowatt, so W the watt, this should be in capital K kilowatt and then R H. W should be in capital, otherwise उसकी मीनिंग चेंज हो जाती है.